ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਗੀ, CM ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਕੀ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਹ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅਨਸਰੇਬਲ ਫॉर दैट? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰਮ ਰੱਖੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲਾਲਚੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਦੇਖੋ, ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੇਖੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਬਈ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। जी सर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अमित शाह और रॉ चीफ के बीच में क्रूशियल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। डिटेल्स तो नहीं पता मीटिंग की, पर ये कहा जा रहा है कि जो अनरेस्ट है कश्मीर में रिगार्डिंग टारगेटेड किलिंग्स, उसको डिस्कस किया गया। ऑफ कोर्स ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या कोई भी इनिशिएटिव लेगी, वो हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने धारा 370 हटाई है तो इससे और नुकसान होगा, ताकि हम घबरा के या पब्लिक प्रेशर उन पे ऐसा पड़े कि उनको धारा 370 वापस लानी पड़े। मेरे को नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट जो उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड है, जो उनका रिजॉल्व है, वो ये स्टेप पीछे लेने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। 16 कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को मारा गया है, और एट द सेम टाइम लोकल लोग भी मारे गए हैं। तो ये एक रेडिकलाइजेशन की कोशिश है और एक डर फैलाने की कोशिश है। अभी कल परसों भी ये खबर आ रही थी कि काफ़ी हिंदू फैमिलीज़ वहाँ से दोबारा पलायन करना चाह रही हैं और वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो माइनॉरिटीज़ में हैं और उन पे रिस्क है, तो सिक्योरिटी देना आपका काम है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती है। और एट द सेम टाइम ये प्लान हमारे देश के दुश्मनों का भी है कि भाई हम ये चीज़ें ये प्रेशर बनाएं। और अब मेरे को लगता है ये टाइम आ गया है कि हमारी आर्मी को एक काइंड ऑफ फ्री हैंड दिया जाए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाए कि हम देश के दुश्मनों के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएँ। और एट द सेम टाइम अब जैसे अमरनाथ यात्रा होनी है, इसमें रफली ये माना जा रहा 3 से 4 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना, क्योंकि वो देश के प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि अगर आप अपने यहाँ पे रिलीजियस जो एक हमारी यहाँ की प्रथा है जो इतने सालों से हो रही है, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर पा रहे, तो ये आपके देश की एक इमेज पे भी धब्बा लगता है। तो गवर्नमेंट को जो सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं कि ये जो यात्रा बिल्कुल सेफली हो, ये एक बड़ा मैसेज आएगा कि भाई हमने एक इनफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है जम्मू एंड कश्मीर में। एट द सेम टाइम ये जो हालांकि हम समझते हैं इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में लोकली हथियार पहुंचाना एक जो नेटवर्क काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने तोड़ा भी है, मनी का, सप्लाई का, लॉजिस्टिक्स का जो नेटवर्क है ISI स्पॉन्सर्ड, वो कश्मीर में काफ़ी हद तक फैला हुआ था। अब एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाना, हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ हद तक कर भी पाती हैं, पर उनको सिर्फ एक ही बार सक्सेसफुल होना पड़ता है। तो मेरे को ये लगता है कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने अपने जो भी स्टेप्स हैं उनको सक्सेसफुल दिखाना है, जनता का विश्वास जीतना है और मिनॉरिटीज़ को ये मैसेज देना है कि जम्मू कश्मीर एक बिल्कुल सेफ जगह है, और ये ग्लोबल मैसेज भी जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो भी कश्मीरी भाई बहन है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर उनका हक बनता है प्रोग्रेस की तरफ, उनका हक है शांति की तरफ, सेफ्टी की तरफ उनका हक है, वो हक दिलवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ता है तो उन्हें लेना चाहिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं तो करनी चाहिए। सर, यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ है जिसमें 80,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं। देखो, ये योगी गवर्नमेंट जो इस बार अपना दूसरा टर्म शुरू किया है, उनका एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। उन्होंने एक रिजॉल्व लिया है बड़ा क्लियर कट। हम हमेशा जब पंजाब के इलेक्शन भी होते थे, हम सारे पार्टियों से बोलते थे कि नंबर ड्रिवन टारगेट दो अपने, कि आप कब तक कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हो, सिर्फ जनरल बातें मत करो। तो योगी सरकार ने यही किया है। उन्होंने ये बोला कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी, सिर्फ जो स्टेट GDP होता है उसको ही हम $1 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। तो ये उसकी तरफ एक स्टेप है टू मेक इट $1 ट्रिलियन इकॉनमी। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसकी इनॉग्रेशन की है। और इससे क्या हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, अगेन हम लॉ एंड ऑर्डर से कंपैरिजन करेंगे, जैसे जैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता जा रहा है, वैसे वहाँ पे लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वरना यूपी के लोग चाहे अपने रोज़गार के लिए, जब देखो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रोज़गार कहाँ मिलेगा, वो अलग अलग जगह पे जाते थे, राइट। दूसरा, जब वो बाहर जाते थे वहाँ पे जो भी इनकम कमाते थे वहीं पे खर्च करते थे, तो उन्हीं एरियाज में ही डेवलपमेंट होती थी। आज योगी सरकार का ये मानना है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे प्रोसेसेस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हम ऐसा इन्वायरमेंट दें, चाहे ईज ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड हो, कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर पाएँ। वो मल्टीपल एयरपोर्ट्स वहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं।
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो यूपी का यूथ है या कोई भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, चाहे वो किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा से हों, उन सबको अपॉर्चुनिटीज़ अपनी स्टेट के अंदर मिलेंगी। जब अपनी स्टेट के अंदर एक वो मीनिंगफुली एम्प्लॉयड होंगे, अपने आप वो ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर अबाइडिंग भी होंगे, अपनी अगली जनरेशन को बेटर एजुकेशन भी दे पाएंगे। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहाँ पे और मार्केट्स डेवलप होती हैं, उससे और ज़्यादा एक सर्कल होता है। तो आई विश कि योगी सरकार और यूपी अपना जो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसका गोल अचीव कर पाए, और हम लोग बाकी स्टेट्स में भी उनको फॉलो करके एक बेटर इन्वायरमेंट। आप पिछले कुछ टाइम से उनका एवरेज ग्रोथ रेट देख लीजिए, यूपी हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ लॉट फास्टर रेट देन द नेशनल एवरेज ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली तभी होती हैं जब आप गुड गवर्नेंस देते हैं, जब आप लॉ एंड ऑर्डर को सेफ रखते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है जो मेरे को लगता है कि अगर हम पंजाब में भी फॉलो करें तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा सर, टीम ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स मेट एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान टू डिस्कस बायलैटरल टाइज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। इज इट रियली अ गुड बिगनिंग? लुक, हमें इस मीटिंग में, जैसा कि खुद फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बोला है, कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट मीन कि इंडिया विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग अ तालिबान गवर्नमेंट। इंडिया को एक तालिबानी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डिसेंसी। वो वहाँ पे जो औरतों पे, बच्चों पे, और इनफैक्ट हम लोग औरतों और बच्चों की बात करते हैं, वहाँ के आदमियों पे भी जुल्म ही हो रहा है, वो भी सेफ नहीं है। उनको भी उन तालिबानी जो टेररिस्ट हैं उनके अंडर, उनके डर में ही रहना पड़ता है। तो हर किसी की लाइफ वहाँ पे बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज से निकल रही है, वहाँ के बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो इंडिया उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, पर वहाँ पे इंडियन असेट्स है, वहाँ पे इंडिया के लोग हैं, इंडिया के बिजनेसेस हैं। तो इंडिया को उसको प्रोटेक्ट करना है, इंडिया को प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा। और हमने पहले भी बात की थी कि आप तालिबान को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह नहीं देख सकते। ये कबीलेयाई माइंडसेट है उनका कि एक जगह पे एक बंदा पावर में है, दूसरे इलाके में दूसरा बंदा पावर में होगा। वो तो काबुल में उनको एक्टिंग गवर्नमेंट बना के दे गए हैं, पर पूरे अफगानिस्तान पे उनका एक्चुअल में कंट्रोल नहीं है। तो इंडिया के असेट्स जो आउटसाइड काबुल हैं, अलग अलग जगह पे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, उनके इंजीनियर्स काम करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं, तो उसको तो गवर्नमेंट को लोकल लेवल के जो तालिबानी लीडर्स हैं या कोई और किसी पर्टिकुलर ट्राइब का लीडर है जो वहाँ पे रूल करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही मैनेज कर भी रहे हैं, और मैनेज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया तो आपका सब कुछ हो गया जी। वो प्रैक्टिकल अप्रोच तालिबान के साथ नहीं चल सकती। वो इंडिया जैसे, यूएस जैसे, चाइना जैसे जहाँ पे एक मेच्योर एक गवर्नमेंट सिस्टम है, वहीं पे चल सकती है, क्योंकि वहाँ पे एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारे यहाँ पे देयर इज लॉ ऑफ द लैंड। आप चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, अफगानिस्तान से वो ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। यहाँ तो आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से जो मर्जी बात कर लो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो आप आर्मी जनरल से बात करोगे, अब आर्मी जनरल का भी कई एरियो पे, नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है उन पे, वहाँ पे आर्मी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। फिर बलूचिस्तान है उनका, वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। फिर कई उनके लोकल कर्नल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिन्होंने अपने अपने फीफडम्स बना रखे हैं, अपने अपने छोटे छोटे राज बना रखे हैं, और वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये हैं बनाना स्टेट्स, अफगानिस्तान होगी, पाकिस्तान होगी, इनकी जनता इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। तो गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, और आइडिया तो सिर्फ इतना है कि हमारे असेट्स जो काबुल फोकस्ड हैं, या जहाँ जहाँ पे ये जो सेंटर में तालिबान के जो कुछ लीडर्स बैठे हैं, वो हमारे उनकी एश्योरेंस लेना कि वो सेफ रहेंगे। Sir, Israel's defense minister Benjamin Gantz met PM Modi and both the countries agreed to deepen defense ties. ये जो combination है इंडस्ट्रियल सुपर पावर और टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर का, ये कितना प्रोग्रेसिव हो सकता है? देखो, इजराइल के साथ हमारे डिफेंस टाइज को अब 3 दशक हो गए। वो हमारे शायद चौथे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर हैं, और वो बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। अब इजराइल हमारा एक नेचुरल पार्टनर है, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ सिमिलर, जो हमारे एनिमीज़ हैं उनमें बड़ी कॉमनैलिटी है, राइट। वी ऑल आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इस्लामिक जिहाद के ख़िलाफ़ या इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़। इंडिया और इजराइल दोनों उससे सफ़र करते हैं और उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं। सो वी आर अ नेचुरल अलायंस पार्टनर्स इन लॉट ऑफ थिंग्स। और टेक्नोलॉजी में जो इजराइल ने कमाल किए हुए हैं, वो इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक छोटा सा देश कैसे टेक्नोलॉजी में अपने आप को बाकी सबसे आगे रख सकता है। और डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय सो मैनी एनिमी स्टेट्स, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इजराइल को बर्बाद करना है, और डिस्पाइट दैट इट इज़ नॉट जस्ट सर्वाइविंग,
इट इज़ थ्राइविंग, वो फ्लरिश कर रहा है, उसने अपने लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर रखी हुई है। तो वो उनमें उनसे सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं, विल पावर की, कि एक नेशन की विल पावर कैसे इम्पोज की जाती है, एक नेशन की सॉवरेनिटी कैसे इम्पोज की जाती है, वो भी लेसन सीखे जा सकते हैं। और हमें उनकी टेक्नोलॉजी, देखो वो एक छोटा देश है, हमारे यहाँ पे मैन पावर है, हमारे यहाँ पे लैंड है, तो हम उनकी जो भी टेक्नोलॉजीज़ को लेके जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं बेंजामिन, उन्होंने जो बात बोली है वो यही बोली है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यू हैव द मैन्युफैक्चरिंग पावर, इट मीन्स वी कैन क्रिएट दोज फैसिलिटीज़ ऑल्सो। तो एक अच्छा कम्बिनेशन जो बन सकता है ताकि हमारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, हम डिफेंस में आत्मनिर्भर भी हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो, और ये रिलेशन जितने डीप होंगे उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर डीप इनसाइट सर। ज़रूरी खबरों के सही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। थैंक यू।